Good morning, all the teachers present here. So, we are gathered here for a very special reason, and that is very much aware to all of you. Today, our training topic is very much known, and that is personal hygiene. During this COVID, we all have learned about hygiene a lot, and I guess that we have wasted a lot of soap and everything in cleaning our hands time to time. So, hygiene is very much important, and to tell us more about this, that how we can or how we should maintain it, we have our very special teacher with us, that is Mr. Sikandar sir, who is going to take us all about in this topic. So without wasting much time, let's welcome sir. So Mr. Sikandar, please welcome. Please give him a huge round of applause. Thank you, ma'am. Respected principal and my dear teachers, today I am going to start the topic, that is personal hygiene. Before I will start the topic, I want to ask you some question. Who is the healthy person? What do you think? Who is the healthy person? Yes, sir. Person who is fit and free from diseases, having physical, mental, and emotional as well as social fitness. Okay. And anyone? Yes, I guess the sir said right, because if we are physically fit, if we are mentally fit, and that is correct. Then how is it possible? Physically fit by, we can keep ourselves physically fit by cleaning ourselves. Hygiene and nutrition. Sir said that the person who is healthy are physically fit, mentally fit, and all the things they are able to do. But what is the reason behind it? Behind the man become healthy. That is hygiene. Hygiene and nutrition. Hygiene and nutrition. Yes. We all know that the hygiene is a very important for us. It plays very important role for us for becoming a healthy person. देखिए, हाइजीन एक ऐसा चीज है जो हमारे लाइफ में, इवन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऐसा नहीं है कि बिना हाइजीन के हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं. कहा जाता है ना कि प्रोटेक्शन इज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. यस नो? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. मतलब क्या है? अभी हम अपने आप को प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में हम लोगों को कुछ भी हो सकता है. इसका जितना ज्यादा एग्जांपल हम लोग आज से 1 साल पहले देख चुके हैं. जब हमारा इन 2020 में जब हमारा कोविड सेशन स्टार्ट हुआ था, इसको एक तरह से हम लोग सेशन ही बोल सकते हैं ना, बिकॉज 1 साल बहुत चला, फिर सेकेंड ईयर से बहुत ज्यादा महामारी फैलाया. इसमें क्या था? इसमें लोग अवेयर नहीं थे. हम लोगों को पता नहीं था कि जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और कैसे है. हम लोग सिर्फ ये जानते थे कि ये एक डिजीज है, एक वायरल डिजीज है जो हमसे किसी और को फैल के पास अफेक्ट करता है. बट इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अफेक्ट तो करता है, बट कंट्रोल कैसे करते हैं? हाँ, मेडिसिन है. इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मेडिसिन. लेकिन मेडिसिन से हम अगर कंट्रोल कर सकते हैं हर एक चीज को, तो शायद आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है. यस नो? बहुत से लोग हैं आज हमारे रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग हैं, या हमारे जान पहचान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच नहीं है. भले उनको हर तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, जो जिसका सामर्थ्य जितना था उससे अधिक ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया, फिर भी वे लोग बचा नहीं पाए. रीजन क्या है? तो इसका मतलब यह है कि मेडिसिन क्योर करता है, लेकिन 100% तो नहीं कर सकते. अगर हमें 100% सेफ रहना है, अगर हमें 100% स्वस्थ रहना है, देन हम लोगों को अपने आप को सुधारना होगा. अगर हम अपने आप को सुधारते हैं, देन वी आर हेल्दी. अगर हम अपने आप को नहीं सुधारते हैं तो फिर पता ही क्या होता है, क्या हो सकता है. ठीक है?
तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से, दैट इज इंट्रोडक्शन। पर्सनल हाइजीन इज द स्टेप to good grooming and good health. Elementary cleanliness is common knowledge. Neglecting it causes problems that you may not even aware of it. जैसा मैंने अभी कहा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें हेल्दी रहना है, then we have to aware from the everything about the health, everything about the health. Then what is the ways? What are the ways by which we can become a healthy person? तो इसी चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। One of the most effective ways we have to protect ourselves and others from illness is good personal hygiene. अगर हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को बचाना है किसी भी तरह के डिजीज से, किसी भी तरह से अफेक्शन से, देन हम लोगों को अपना हाइजीन पे ध्यान देना होगा। अगर वी आर नॉट ए माइंड आवर हाइजीन, अगर हम लोग अपने हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोगों को बहुत तरह की बीमारियां आज हमारे बीच है जो हम लोगों को ग्रसित कर सकती है। मोस्ट कॉमन डिजीज जो हमारे बीच है वो है हमारा डायरिया, दस्त। हर एक लोग इससे कभी न कभी अफेक्टेड जरूर हुए होंगे। वायरल फीवर ये भी हमारा एक अफेक्टेड कॉमन डिजीज है जो हमारे आसपास होता है। ये होता कैसे है? हमारी कुछ गलतियों की वजह से ये हमें होता है। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कंटामिनेटेड फूड लेते हैं तो उससे ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकता है, होता भी है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते नहीं है। मन तो हमारा मानेगा नहीं। बाहर जाएंगे, अभी स्कूल छुट्टी होगी, हम लोग सब बाहर निकलेंगे, बाहर जाएंगे, ठेले पे गुपचुप मिलेगा या फिर और भी स्ट्रीट फूड मिलता है हम लोगों को, हम लोग लेते जरूर है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसान करता है, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। Personal hygiene may be described as the principle of maintaining cleanliness and grooming the external body. People have been aware of the importance of hygiene for thousands of years. It means personal hygiene जो है वो एक हमारा मेंटेन करने का एक तरीका है, एक सिद्धांत है कि हम अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। लोगों के देखिए, हम लोगों को जो दिखता है वही होता है। आपके पास बहुत अच्छे से चीजें अवेलेबल है, आप बहुत अच्छे से कॉस्टली ड्रेसेस जरूर वेयर करते होंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से दिख नहीं रहे हो तो आपको लोग क्या बोलेंगे? वी आर डर्टी पर्सन, ये लोग बोलते हैं और समझते भी। तो अगर हम लोगों को जो दिखाना है वो दिखाने के लिए हम लोगों को हाइजीन का नॉलेज होना चाहिए और उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर हम इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं देन प्रॉब्लम हमें तो होती ही है, साथ ही साथ हमारे आसपास में जितने लोग हमारे साथ हैं उन सबों को भी हम प्रॉब्लम में डालते हैं। जैसे अभी कोविड के सेशन चला था, जिसमें क्या था? कोविड एक वायरल डिजीज है, हम लोग सब जानते हैं। इसमें क्या था कि हम लोग अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हम अगर अफेक्ट है तो वो भी हमारे साथ इफेक्ट होगा, ये था। तो इससे भी हम बच सकते थे और बचे भी हैं। बहुत से लोग बचे हैं, बहुत से लोग नहीं बच पाए, तो थोड़ा दुख होता है, बट क्या कर सकते हैं। अगर जो लोग बचे हैं तो कहीं ना कहीं वे लोग अपने हाइजीन पे ध्यान जरूर दिए होंगे, प्रिकॉशन पे ध्यान जरूर दिए होंगे। अगर हम लोग हाइजीन पे ध्यान नहीं दिए होते तो शायद आज हम अपनों के बीच नहीं होते। Yes or no? Yeah. Next. Welcome again, lovely people. You guys are our pride and we provide our best in making you the most successful. In order to be a successful person in life, you are to learn some basic rules now. No, these rules are provided not to fence or restrain you, but to guide you to the path of success. Today, we are here with you to share the lessons regarding the most important feature of healthy life. You must have heard the word hygiene from your parents. Sounds familiar?
Your mom must have told you to maintain hygiene and be clean. But do you know what hygiene stands for? Here is your answer. Few methods or conditions adopted in form of practices in daily life maintained for health and avoiding diseases. The basic idea is to avoid disease through maintaining cleanliness. These set of practices helps in preserving your health condition, restraining the appearance of disease to be absorbed in day-to-day life. Kids, you're just at your childhood age. We have previously spoken about the sensitive nature you carry. This makes you much prone to disease as you get to absorb infection in the air very easily. Added to that, your good habits make you a perfect social person. We are here to give a brief idea of the importance of maintaining hygiene in regular life. Here are a few reasons. Hygiene helps you to maintain a stable and strong body image. You live in society. You face and interact with various people each day. A proper attitude is a must for building a proper image. Maintaining hygiene helps you in improving your body image. When doctors speak, these practices helps you gain self-esteem, high confidence, and keep you motivated. Again, a hygienic child always remains fit and healthy. They rarely get attacked by germs and virus constantly moving the air. If you do not maintain hygiene, you are to adopt these bad habits ahead in your life. This will surely affect your personality and result in a terrible problem in your future. Habits are tough to change, remember? Thus, cleanliness is necessary. You must be clean and ask your friend to do the same. Meanwhile, subscribe to Hungama Kids because we are fulfilled. इस वीडियो में ये बताया गया कि हम लोग अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, अपने आप को हेल्थ कैसे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अगर हम लोगों को स्वस्थ रहना है, अगर वी हैव टू स्टे हेल्दी, देन हम लोगों को बहुत सारे हाइजीन मेथड्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हाइजीन मेथड ये है कि हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। अभी बरसात का टाइम है ना? अभी हमारा सराउंडिंग बहुत गंदा दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ वाटर। अगर हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को हेल्थी रखना चाहते हैं, देन हमें अपने आप हमारे आसपास में जितने भी चीजें हैं उनको साफ रखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज दैट, अगर हम कहीं भी जाते हैं या कहीं से भी आते हैं तो आते के साथ सबसे पहले हमारा जो पहला काम होता है हमारा हाथ धोना या फिर जो भी चीजें हमारी जरूरत है वो पूरी करनी होती है, देन हम लोग अगर काम कर सकते हैं, अगर हम लोगों को सेफ रहना है। लेकिन हम लोग करते क्या है? अभी तो हम लोग पता है कि हम लोग सुबह नाश्ता करके आए थे ना? कितने लोग करके आए थे? सभी लोग। सबको भूख लगा होगा, नो डाउट। हम लोग का आदत क्या है ना कि हम लोग जैसे ही घर जाएंगे कुछ किए चाहे नहीं, हाथ धोना तो धोए, नहीं धोना तो नहीं धोए, किचन में खाना मिल गया खा लेना है। बहुत कोई करते हैं सर, हम और आप नहीं करते, कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं, खासकर बच्चे, ये सिर्फ हमारी और आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर किड्स जो समझते नहीं है या जिनको पता नहीं है, तो उनको बताना है। आज मैं इसलिए ये बातें डिस्कस कर रहा हूं हम लोगों के बीच में, बिकॉज हमारे घर में या हमारे आसपास में बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग जिस प्रोफेशन से हैं, हम लोग को सिखाना होता है बच्चों को कि हम लोग अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। यस नो? तो अगर बच्चों को हेल्दी रखने के लिए सिखाना है तो सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा कि हम लोग अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। तो हम लोगों को अगर हेल्दी रहना है तो हम लोगों को इन सभी चीजों पे ध्यान देना होगा जो कि इस वीडियो में मैंने दिखाया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा हाइजीन का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन। देखिए, हाइजीन का बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, तो उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है बॉडी इमेज। हमारा शारीरिक इमेज जो होता है, हमारा एक पर्सनल इमेज जो होता है, हमारा लोगों के बीच में हमारी छवि जो होती है, वो भी हमारा हाइजीन से झलकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोग बहुत सारे महंगे कपड़े अवेयर कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कॉस्टली चीजें अवेयर कर सकते हैं, लेकिन खुद को हम अगर साफ ना रखें तो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं।
आज हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। खासकर ड्राइवर्स या लेबर्स, उन लोगों को देखे आप और हम जरूर देखे होंगे, उन लोगों का पहनावा भी देखे होंगे, उन लोगों का रहन सहन भी देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि वे लोग हाइजीन का मेंटेन करना नहीं चाहते, करते हैं, बट थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वे लोग पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पूरी तरह से मेंटेन खुद को नहीं कर पाते। वो अपने आप को भी नहीं कर पाते हैं, ना अपने आसपास के लोगों को भी, अपने बच्चों को भी वो नहीं करा पाते। क्यों? बिकॉज हम लोग उन लोगों को पता नहीं है या फिर उन लोग को अवेयर नहीं है। तो हम लोगों को उन सब लोगों को भी अवेयर करना चाहिए ताकि वे लोग अपने आप को स्वस्थ रख सके। और अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो कहा जाता है ना, एक हेल्दी पर्सन अपने पूरे परिवार को भी स्वस्थ रख सकता है। वही काम वे भी कर सकते हैं और करते भी होंगे। नेक्स्ट, सोशल रीजन। अब हमारा कुछ सोशल रीजन है जिसकी वजह से हम लोग हाइजीन को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं या फिर इंपॉर्टेंस है हमारा हाइजीन का। इसमें क्या है कि लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, हम भी उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो अच्छे से रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। अगर हमारे आसपास में लोग अगर गंदे हैं तो उसको लोग धुतकार के भगा देते हैं या फिर उससे दूर हम लोग निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना है तो उन लोगों को भी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा, उन सबों को भी इन सब चीजों के बारे में बताना होगा ताकि वे लोग अपने आप को मेंटेन कर सके, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी बता सके और उनको भी इन सब चीजों पे काम करने के लिए एक फोर्स कर सके, बता सके और करने पे मजबूर किया जा सके ताकि हमारा सोसाइटी, हमारा सोशल वो भी साफ रह सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ रीजन। हेल्थ रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि अभी हम लोगों को भूख लगी है, स्कूल से जैसे ही बाहर निकलेंगे हम लोग आउटसाइडर्स फूड बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद करते हैं। भले हम लोगों को पता है कि स्ट्रीट फूड में हमारा बहुत सारे कंटामिनेटेड थिंग्स अवेलेबल हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लेते हैं और थोड़ी बहुत नहीं लेते तो बहुत लेते हैं और नहीं तो फिर नहीं लेते। जब तक हमारा मन नहीं भरता है तब तक हम लोग जरूर लेते हैं। या फिर अभी आने 1-2 महीने बाद शादी की सीजन शुरू हो जाएगी, 1-2 महीने पहले शादी की सीजन खत्म हुई है, उस समय भी लोग पार्टीज में बहुत जाते हैं, हम लोग भी गए होंगे, तो वहां भी खाने से ऊपर हम लोग खाना ले लेते हैं। भले खाएं या ना खाएं जरूर लेंगे, थोड़ी सी अपने इगोइस्टिक माइंड आ जाता है, लेते जरूर है। तो इसे खाने का तो लेते ही खाना हमारा वेस्ट होता ही है, साथ ही साथ हमारा हेल्थ भी इश्यू होता है। बहुत से लोगों को स्पाइस फूड नहीं पसंद है, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको स्पाइस फूड से एलर्जी है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां से लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो भी मैंने बताया डिसेंट्री होना या फिर डायरिया होना, दस्त वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर हम लोग इन सब चीजों से अवेयर ना हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हाइजीन का हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इशू। देखिए, साइकोलॉजिकल इट मीन्स मानसिक। अगर हमारा हमेशा तबियत खराब रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। जैसा तो आप अपने घर में या हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल मेडिसिन पे जीवित हैं, चाहे वो बीपी का मेडिसिन हो या किसी अदर चीज का मेडिसिन हो, लेकिन जो मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं उन सबों से कभी बात करके देखिएगा, वो कहीं ना कहीं आप उनको अच्छी बात भी बोलोगे तो उनको थोड़ा चिड़चिड़ापन जरूर आ जाता है। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट होता है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हाइजीन। अगर समय रहते अगर हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान ना दें तो कहीं ना कहीं हम तो अफेक्ट होंगे, साथ ही साथ हम अपने आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करेंगे, अपने परिवार को भी अफेक्ट करेंगे। जैसा मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक हेल्दी पर्सन ही अपने परिवार को हेल्दी बना सकता है
और कोई नहीं बना सकता है। आप अपने परिवार को, हम अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को हम हेल्दी बना सकते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ अवेयर देम। हम लोग उसको अगर अवेयर करते हैं, हम लोग अगर उनको बताते हैं, समझाते हैं, तभी वो परिवार हेल्दी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ एरिया टू मेंटेन हाइजीन। अब हम लोग अपने अपने हाइजीन को कहां कहां मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग तो अभी बहुत देर से बात कर रहे हैं कि हाइजीन के बारे में, हाइजीन से क्या इफेक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनके बारे में जाने। लेकिन हाइजीन का उपयोग हम लोग कहां करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग अगर हाइजीन के बारे में जान रहे हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और कहां करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा वो है हेयर हाइजीन, बालों को साफ रखना। बालों को साफ रखना सबसे पहला। अब जिनका नहीं है तुमने कहना नहीं है सर, लेकिन जिनका है वो तो कर सकते हैं ना। देखिए, डर्टी हेड हेयर डज नॉट एक्चुअली कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। इट्स मोस्टली फॉर अपीयरेंस फैक्टर दैट कीपिंग हेयर क्लीन इज गुड आइडिया। देखिए, अगर हमारा बाल गंदा है या बहुत ज्यादा गंदा है, इससे हम लोगों के हेल्थ पे वैसा कोई इशू होता नहीं है, हम लोग को हेल्थ को उतना इफेक्ट करता नहीं, लेकिन हमारा अपीयरेंस पे हेल्थ अफेक्ट करता है। हम पहले ही बोले थे कि अगर हम लोग हाइजीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम लोग हाइजीन को यूज करते हैं डे बाय डे, तो हमारा अपीयरेंस भी अच्छा होता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलप करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है हमारा लुक, हम लोग दिख कैसे रहे हैं, हम लोग दिखना कैसे चाहते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा हेयर हाइजीन। तो इसको ठीक करने के लिए या फिर अपने बालों को साफ रखने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। At some point of our life, especially in our teenage years and at times of hormonal change, hair can become greasy more easily. So, the one solution is to wash hair every alternate days. देखिए, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, टीनेज में हम लोग पहुंचते हैं, या फिर हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसमें हमारे बालों में एक अजीब तरह का होता है ग्रीसिंग जम जाना, या फिर हमारा जेट हो जाता है, बाल थोड़ा कड़ापन आने लगता है। तो इन सबों से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अगर हम लोगों को अपने बालों को स्वस्थ और स्मूथ रखना है, तो हम लोगों को अल्टरनेट डेज पे बालों को धोना होगा, साफ करना होगा विद द हेल्प ऑफ शैम्पूज एंड शैम्पूज, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो होते हैं हमारे साथ, ऑयलिंग करना होगा। इन सबों को ध्यान में रखना भी है और इनको इस्तेमाल भी करना होता है, ताकि हम लोग हमारा बाल या हम लोग सही तरीके से दिख सके। सेकेंड इज फॉर डैंड्रफ प्रॉब्लम। देखिए, हम लोगों में डैंड्रफ प्रॉब्लम भी होता है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे बालों में, उनसे अगर हम लोगों को दूर रहना है, उनसे अगर हम लोगों को बचे रहना है, देन हम लोगों को करना होगा क्या? उस एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल करना होगा, और टाइम टू टाइम हम लोगों को हमारे बालों में ऑयलिंग भी करना होगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, टीथ एंड माउथ। देखिए, टीथ एंड माउथ, हमारे मुंह और हमारा दांत, ये हमारा मोस्टली हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में भी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग जो भोजन ले रहे हैं उसका डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा मुंह ही गंदा हो, या फिर बैक्टीरिया हमारे मुंह में हो, हमारे दांतों में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो फिर जो भी भोजन हम लेंगे उसमें वो डाइजेस्ट तो होगा, वहीं से स्टार्ट होता है डाइजेशन होना। तो जो भी बैक्टीरिया हमारे पास प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो फूड में मिक्स होकर के वो और हम लोगों को डैमेज करेंगे, हमारा हेल्थ के साथ और भी अफेक्ट करेंगे। तो देखते हैं, अ ब्यूटीफुल स्माइल कैन मेक अ पर्सन्स डे, बट इफ टीथ आर smelly,
इट हैज एंटायरली डिफरेंट रिजल्ट्स। मतलब ये है कि हम लोग का एक हम लोग जब अच्छे दिखना चाहते हैं तो हमारे दांत भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे नो। हाँ, देखिए कुछ भी होता है, एक छोटा सा जोक भी जब सुनाया जाता है तो हम लोग हंसते हैं, खिलखिला के हंस पड़ते हैं, इसमें हमारा दांत जरूर दिखता है। अगर हमारा दांत पीलापन आ गया, हमारे दांतों में गंदगी बैठी हुई है, तो लोग हमसे दूर भागते हैं क्या? तो इन सभी चीज जो, इसके अलावा हमारे मुंह से एक अजब सा स्मेल आता है जो हमारे लिए या हमारे आसपास में लोग जितने प्रेजेंट हैं उनको सही ना लगे, उनको अच्छा ना लगे, जो हमारे पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास कुछ टिप्स दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मुंह को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वो ये है, हाँ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स। कुछ थोड़ी पानी हम लोगों को हमेशा पीते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि पानी पीने से क्या होता है, जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे पास, हमारे दांतों में, हमारे मुंह में अवेलेबल है, वो पानी के साथ घुल जाता है और उसको हम लोग निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं या फिर इनहेल कर जाते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली विद डिसेंट टूथपेस्ट। जो भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसी को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ब्रश हम लोगों को हमेशा दिन भर में, एक दिन में 2 बार करना होता है, एक सुबह और एक शाम। ठीक है, होता क्या है, क्यों करना है? आखिर हम ब्रश 2 बार क्यों करें? रीजन क्या है हमें ब्रश करने की? कुछ तो कारण होगा ना जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ब्रश हम लोग को 2 बार करना चाहिए, एक सुबह में तो करते ही है, शाम में भी करना चाहिए। रीजन क्या है? देखिए, रीजन कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। वो ये है कि अगर हम लोग को सेफ रहना है, हेल्दी रहना है, देन हम लोग को ये सब करना जरूरी है। रीजन ये है कि सुबह तो हम लोग ब्रश कर लेते हैं, दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ खाते जरूर रहते हैं, कुछ स्वीट्स खा लेते हैं, कुछ और भी चीजें खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि हमारे मुंह में, हमारे दांतों में बैक्टीरिया, कैविटीज अटैक करता रहता है। ठीक है, अगर हमको अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हम लोग को ब्रश करना होगा। इसलिए क्योंकि अगर बैक्टीरिया हमारे पास प्रेजेंट है तो दिन भर का बैक्टीरिया तो हम लोग कर लिए, तो हो गया, सुबह में धो लिए तो रात जो भी बैक्टीरिया था वो पहले निकल चुका है। लेकिन दिन में हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना कहीं ना कहीं हमारे दांतों में फंस जाता है, जो एक दांतों को सड़ाने का काम करता है ना। देखिए, खाना पच रहा है मतलब वो जो भी खाना हम लोग ले रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे नो, खाना हमारा सड़ता है या नहीं सड़ता है? सड़ता है। तो सड़ने के लिए उसको जो भी जगह चाहिए तो वो सड़ेगा ही। तो अगर हमारे दांतों में फंसा हुआ खाना है वो भी सड़ेगा, गलेगा, जिसकी वजह से अब सड़ने गलने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया। अब वो केवल खाने को ही नहीं सड़ाता है, हमारे दांतों पे भी अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से भी गंदी स्मेल आती है या फिर हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो इन सबों से बचने के लिए हम लोगों को दिन भर में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। यूज अ राइट बेस्ट टूथपेस्ट एंड एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश। अगर हम लोगों को सही तरीके से अपने मुंह को, अपने दांतों को साफ रखना है, देन हम लोग को बेस्ट से बेस्ट पेस्ट चाहिए, अच्छे से अच्छे पेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट। साथ ही साथ माउथ वॉश तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, तो जो माउथ वॉश आता है वो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर माउथ वॉश एंटीबैक्टीरियल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर माउथ वॉश हमारा काम क्या करता है, हमारे मुंह में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको मारता है। तो अगर वो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया जो हटाना था वो हम हटा नहीं पाएंगे। तो फिर वही होगा जो होता ही है। होगा क्या, हमारे खानों में खाने के साथ मिक्स होगा, डाइजेस्ट होगा, वो हमारे इंटरनल बॉडीज को अफेक्ट करेगा। यस सर, ठीक। नेक्स्ट, अवॉइड ड्रिंक such coffees such as coffee, tea and red wine which are true to stain them। जैसे टी, कॉफी या फिर रेड वाइन, इन ऐसे कुछ ड्रिंक्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा
देखिए इससे क्या होता है ना, जो चाय हम लोग पीते हैं या जो कॉफी हम लोग पीते हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमारे दांतों में चिपक जाता है, जिससे हम लोगों को बाद में इफेक्ट होता है। अगर हम लोगों को अपने आप को बचाना है तो इन सभी चीजों को दूर करना होगा, इन सबों से थोड़ा दूरी बना के रखना होगा, ताकि हमारा दांत, हमारा मुंह सब कुछ सही रहे। नेक्स्ट है, विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली टू कीप अ चेक ऑन गम इन्फेक्शन और एनी डेंटल प्रॉब्लम्स। समय समय पे हम लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, ताकि हमारे, देखिए होता क्या है, गम इन्फेक्शन क्या होता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। इससे क्या है ना कि हमारे मसूड़े में अधिक एक हमारे मुंह से ब्लीडिंग होता है, दैट मींस गम से ब्लीडिंग होता है ना। तो इन सब चीजों से हम लोग बचते हैं। क्लियर? तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों को टाइम टू टाइम लोगों को अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराया जा सके और उससे हम लोग क्योर हो सके। नेक्स्ट, अभी कुछ वीडियोस है इसका। हाँ, अभी जिस चीज के बारे में मैंने बताया, अपने आप को साफ रखने के लिए सबसे पहले हमारा जरूर होगा दांतों को साफ रखना, मुंह को साफ रखना। इससे रिलेटेड एक वीडियो है, इसको देखिए। मैंने जो भी चीजें आप लोगों को भी बताया वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, सर। Brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Eat your food, eat it every day. Father, mother, brother, sister, eat it every day. Eat your food, eat it every day. Father, mother, brother, sister, eat it every day. Drink your milk, drink it every day. हाँ, अब अभी जो वीडियो हम लोगों ने देखा उसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया था जो मैंने भी डिस्कस किया था। अभी जो है, स्टे क्लीन टू अट्रैक्ट फ्रेंड्स नॉट फ्लाइज। अब जैसे मैंने अभी शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ कि अगर हम लोग साफ रहेंगे तो हम लोग अपने आसपास के लोगों के साथ बने रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम साफ रहते हैं तो हमारे दोस्त हमारे साथ हमेशा रहते हैं। केवल दोस्ती नहीं, हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं वे सब हमारे साथ बने रहते हैं। लेकिन अगर हम गंदा रहते हैं, हम लोग हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो लोग हमसे दूर भागते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। अब है हमारे पास एक फूड हाइजीन। अब हम लोग को जानना है कि हम लोग जैसे मैंने हाइजीन के बारे में बताया था, तो इसमें केवल दांतों के बारे में, मुंह के बारे में, या हम लोग को हमारे बालों के बारे में नहीं, हम लोग के पास जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सबों को साफ रखने के बारे में जानना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मुंह को साफ कर लिए, दांत को साफ कर लिए तो हम लोग हाइजीन को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने बालों को साफ कर लिए, फेस धो लिए तो अपने हाइजीन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है।
बीमार पड़ने के बहुत सारे कारण हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बीमार पड़ जाओगे। होता है कि नहीं? अभी जैसे कि अभी हम लोग सब यहाँ पे स्वस्थ बैठे हुए हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं या जो भी हो रहा है वो चीज देख रहे हैं। यहाँ से घर गए, पेट दर्द या फिर सर दुखना स्टार्ट हो गया, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, या फिर थोड़ा थोड़ा फीवर टाइप में आने लगता है, लगने लगता है। तो ऐसा ये कब हुआ, कैसे हुआ, हम लोग को पता चला क्या? नहीं पता नहीं चलता है हम लोगों को कि हम लोग का तबियत कब खराब होता है, हमारा हम लोग इफेक्ट कब हो जाते हैं। तो केवल इफेक्ट से बचने के लिए हमारा दांत, मुंह या हमारा बाल या हमारा फेस यही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो उनमें से एक और कारण है हमारा फुट हाइजीन, पैरों को साफ रखना। देखिए हमारा सबसे पहले और हमारा शरीर का सबसे ज्यादा जो गंदा होने वाला पार्ट है वो हमारा पैर, क्योंकि पैर हमारा एक जगह रुकता नहीं है, टिकता नहीं। आज यहाँ है, अभी यहाँ बैठे हैं, आफ्टर समटाइम्स किसी ने कॉल किया तुरंत वहां चले जाएंगे। तो जाने के पीछे जाते तो है, तो जो आसपास में जितने भी चीजें हैं उन सबों के साथ तो इफेक्ट होता ही है, हमारा कांटेक्ट तो बनता ही है हमारा। तो इसकी वजह से हमारा पैर भी गंदा होता है। ठीक है। द फीट कंटेन्स लॉट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, हमारे पैरों में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स का मतलब क्या है? देखिए पैरों में बहुत सारे पसीना आता है, जितना शरीर में हमारा पसीना नहीं निकलता ना, उससे ज्यादा पसीना हमारे पैरों से निकलता है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। If feet are confined in socks and shoes, the sweat glands has now here to evaporate, and the skin bacterial will in effect attack to cause the pungent cheesy aroma. देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे पास, हमारे आसपास में, जिनका सॉक्स स्मेल जरूर करता होगा। कितने लोग हैं जिनका सॉक्स स्मेल करता है? बहुत से लोग हैं, भले हमारे बीच में नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन बहुत से लोगों के बीच में, बहुत से लोगों के साथ ये होता है। ये कारण क्या है? बिकॉज ऑफ स्वेट, जो हमारे पैरों से रिलीज होता है, और ये जो स्वेट है वो हमारे सॉक्स के साथ अब्सॉर्ब हो जाता है, इवोपोरेट होता है, जो हमारे स्किन बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से हमारा पैर स्मेल करने लगता है, हमारा सॉक्स स्मेल करने लगता है। अगर हमें इन सभी चीजों से बचना है तो इसके पीछे भी कुछ टिप्स है, उसके बारे में जानेंगे कि हम लोग इन सब चीजों से बचे कैसे। देखिए सॉक्स स्मेल करना या पैर हमारा स्मेल करता है, ये कोई चीज, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं लगता कि होता है, लेकिन ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है वो पैर के थ्रू या हाथ के थ्रू या किसी भी चीज कारण से हमारे अंदर जा सकता है, जिससे हम लोग क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया ही ना रहे तो हम लोग इफेक्ट नहीं होंगे। तो उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए जो भी हम लोगों से हो पाता है, हम लोग वो काम करना चाहिए हमें। अगर हम नहीं करते हैं तो दिक्कत है। तो उनमें से एक है हमारा पैर। पैर में भी जो स्वेटिंग होता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, जो कि बहुत लास्ट में स्किन डिजीज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम लोग स्किन डिजीज के बारे में जानते हैं। स्किन डिजीज होता क्या? जैसे कुछ लोग जिसको बहुत गर्मी के टाइम में ज्यादा पसीना होने की वजह से खुजली हो जाता है और रैशेस हो जाते हैं, इन सभी चीजों से बचने के लिए भी हम लोगों को ये काम करना चाहिए। तो पहला क्या है? वॉश योर फीट रेगुलरली एंड ड्राई थोरोली विद द सॉफ्ट टॉवेल एंड एन एंटीबैक्टीरियल पाउडर और बॉडी टायर। ठीक है। हम लोग को अपने पैरों को धोना होता है, हमेशा धोइए और उसको सुखाइए। वो भी जो टॉवेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉफ्ट टॉवेल होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए और साफ होना चाहिए। इसके अलावा साफ, जब हमारा पैर सूख जाता है या हमारा शरीर जब सूख जाता है तो हम लोगों को एंटीबैक्टीरियल पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए और बॉडी टायल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो भी बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स हमारे पास अवेलेबल है वो भी दूर हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, आपको याद आ रहा है क्वेश्चन मुझे, वो ये है कि हम लोग जब वॉश करते हैं हाथ को, पैर को, हमें अपने शरीर को, तो सुखाना क्यों चाहिए? या
देखिए, जब हम लोग का हमारा शरीर भीगा होता है, वेट होता है, इससे बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर एंटर करने में बहुत कम समय लगाता है। अगर हम लोगों को इन सबों से बचना है तो हम लोगों को वेट ड्राई करना होगा, ताकि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में ही बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया आ रहा है तो कहां से आ रहा है? विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। हाँ, या तो इन सबों से बचना है तो हम लोगों को साफ रहना होगा। धोना तो है, साथ ही साथ सुखाना भी है। जितनी जल्दी हम धोते हैं उतनी जल्दी सुखाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है बॉडी वॉश एंड हैंड वॉशिंग। अ रेगुलर बाथ हेल्प इन कीपिंग क्लीन, फ्रेश एंड ऑर्डर फ्री। अगर हम रेगुलरली अपने आप को बात करते हैं, नहाते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं, तो हमारे शरीर से जितने भी दुर्गंध आती है वो दूर हो जाएगी। अब दुर्गंध आने का कारण क्या है? जो भी मैंने डिस्कस किया, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबों की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? दुर्गंध आता है, जो हम लोगों को अफेक्ट करता है। हमारे आसपास में जो भी चीजें अवेलेबल है, जो भी लोग अवेलेबल है, उनको भी अफेक्ट करता है। अगर इनसे बचना है तो हमें कुछ टिप्स का अनुसरण करना होगा, कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, ताकि हम लोग इन सब चीजों से दूर हो सके, बच सके। फर्स्ट, बाथिंग हेल्प टू rejuvenate the skin, removing and the dead cell and prevent blemishes and skin eruption। देखिए, ऐसा नहीं है कि बात करने से केवल हमारा वायरस ही धुलता है, नहीं। किसी हम लोग का एक और प्रॉब्लम है कि स्किन डिजीज, जिसे भी मैंने बताया था, उसमें केवल खुजली होना या फिर और भी चीजें नहीं, इसके अलावा हमारा स्किन प्रॉब्लम में हमारा स्किन रैशेस भी होते हैं, हमारा स्किन उखड़ता है, जो डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में, वो भी धुल कर निकल जाता है, जो कि सही है, हमारे हाइजीन को बनाए रखता है। नेक्स्ट है मेक अ पर्सनल टॉवेल एंड वॉश देम रेगुलरली। अपना जो टॉवेल है वो एक पर्सनल टॉवेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग मैक्सिमम घर में क्या करते हैं ना, एक ही टॉवेल से हर जितने भी मेंबर्स हमारे पास अवेलेबल है हमारे घर में, वे सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नहीं, अपना पर्सनल टॉवेल होना चाहिए, अपना पर्सनल सोप होना चाहिए, ताकि उसका सिर्फ हम इस्तेमाल कर सके और हमारे अलावा कोई और ना। ठीक है। सेकंड, मेक अ प्रॉपर हैबिट ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग। अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम जाने के बाद, वॉशरूम से जब हम बाहर आते हैं तो हम लोग को अपना हाथ साफ रखना होगा, धोना होगा, या फिर खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बतलाया था कि हम लोग को अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सुबह नाश्ता करके आए, भूख अभी तो लग गया होगा। घर जाते हैं, खासकर बच्चे बहुत ज्यादा ये करते हैं, घर जाते हैं, खाना मिला तुरंत खाना स्टार्ट करते हैं, हाथ धोए या ना धोए। खासकर लंच में लोग बहुत करते हैं, बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर करते ही है। यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी मिला, हाथ धो लिए और खाना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसी से रिलेटेड एक वीडियो है, इनको देखिए। आपको जो भी मैंने बताया वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, जितने भी डाउट्स है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। Children, have you heard that hygiene is very important for us? Do you know what is hygiene? Hygiene is the small things we do to keep ourselves clean and healthy. We must keep ourselves and our surroundings clean. Today, let's learn a few hygiene habits by reciting a rhyme. Wash your hands before and after every meal. Wash your hands, cleaner you will feel. Wash your hands after using the toilet as well. With soap and water, wash your hands, lovely they will smell.
Wash your hands before and after every meal. Wash your hands, cleaner you will feel. Wash your hands after using the toilet as well. देखिए, अभी ये जो वीडियो हम लोगों ने देखा, इसमें ये दिखाया गया कि हम लोगों को जो भी चीजें मैंने जैसे बताया था कि वो टॉयलेट से पहले, खाने के बाद हम लोग को वॉश करना चाहिए, ये हम लोग करते ही हैं। लेकिन हम लोग ये इस बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक तरह से अपने आसपास के लोगों को भी बताना है, हमें उनको भी अवेयर करना है कि ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी पानी मिल गया, हाथ धो ली तो हो गया, नहीं। खासकर हम लोग अपने बच्चों को इन सब चीजों के बारे में अवेयर करना है कि नहीं, थोड़े से पानी में हाथ नहीं धुला जाता, या जब भी हमें हाथ धोना है तो एक अच्छे से सोप का इस्तेमाल करें, या फिर जो भी चीजें हमारे पास है उन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। एटलीस्ट जो भी हम लोग, हाँ। और रही बात कि हाथ धोने का मतलब ये नहीं है कि केवल पानी डाले हो गया, सोप इस्तेमाल करें इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार हाथ को मले हो गया, नहीं। कम से कम हमें 20 सेकेंड तक हाथ को अच्छे से धोना होगा ताकि जो भी बैक्टीरिया है, जो भी जर्म्स है, वो सब क्लियर हो सके। स्किन हाइजीन, स्किन हाइजीन भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बाथिंग के बारे में बताया था, नहाने के बारे में, वो रिलेटेड था स्किन हाइजीन से ही। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कुछ हो या ना हो, हमारे आसपास में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो डायरेक्टली हम लोगों की स्किन पे अफेक्ट करता है, अटैक करता है। अगर हम लोगों को इन सब बचना है तो इन सब कुछ चीजों को फॉलो करना होगा। वो ये है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, दैट इज 8 to 10 cups पर डे, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट 6 to 8 hours at a night so that you are fresh and ready to take one day every morning। मतलब अगर हम लोग को अपने आप को बचाना, साफ सेफ रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। पानी अच्छे से पीजिए, अच्छे से पीना चाहिए, केवल हमें ही नहीं, हम लोग अपने बच्चों को भी यही बताएं कि पानी हम जितने ज्यादा लेते हैं उतना हमारा जो स्किन प्रॉब्लम है उन सभी चीजों से हम लोग दूर होते हैं। वॉश द फेस विद फेस वॉश, सोप्स एक्सेट्रा, ताकि जो भी बैक्टीरिया या जो भी जर्म्स या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे स्किन में, हमारे फेस में है, वो सब भी धुल जाए। और मेक अ शेड्यूल फॉर 1 fruit a day फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। अगर हम लोगों को अपने आप को हेल्थ रखना है, हेल्दी रखना है और हमारा स्किन ग्लो करता रहे, तो कम से कम ये अपने एक रूटीन बना लेना होगा कि 4 डे एक फ्रूट का सेवन जरूर करें। इससे क्या होता है कि जो भी स्किन का डेवलपमेंट, स्किन को जो डेवलप करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा फ्रूट अवेलेबल करवा सके। नेक्स्ट, नाउ regarding my presentation, whatever the presentation is going on, some questions are there. I will ask you some questions, please answer it. First question is, SPM stands for? Suspected particulate matter. Yeah, thank you. Answer is good. Right answer. How long should you wash your hand? How many times a day should you brush your teeth? Which country consume the most energy in the world? नहीं. Anyone? USA, United States of America. Expanded form of HIV. Huh? Yeah, human immunovirus. Next, normal temperature of human body 27 degrees Celsius. No, that is 37 degrees Celsius and 98.6 Fahrenheit. What element is added to water to prevent tooth decay? नहीं. Fluoride. Fluoride is a element which is added to water to prevent our teeth decays. Next.
Which ministry initiated Swachh Bharat Abhiyan? Yeah, Swachh Bharat Mission. Yeah. What is the single most effective way to prevent the transmission of disease? Maintaining the hygiene. Maintaining our personal hygiene. What is the reason for drying our hands after washing them? Because to prevent the fungus infection and many other bacterial infections. Okay, that's it. Thank you.